Hello students, welcome all of you. Today we are going to start the next chapter, that is chapter number 4, heat. Heat के बारे में पढ़ेंगे हम. Heat, as you all know, meaning of heat you can say as गर्मी. So let us start. In chapter 3 you have learned that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winter when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. So chapter 3 में we have learned that woolen clothes are made from the animal fiber से बनते हैं ये, whereas जो कॉटन थे आपके, जो कॉटन क्लॉथ है, they are made of plant fibers. Also we discuss that during winter we wear woolen clothes because तब क्या होता है, बाहर ठंड होती है. एंड द वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म, ये हमें गर्म रखते हैं बिकॉज दे गिव अस हीट. और वी कैन से कि ये जो है क्या करते हैं, इनसे हमें हीट मिलेगी उस वक्त अगर हम इनको पहनेंगे तो जो वो हीट है वो बाहर नहीं जाएगी हमारी बॉडी से. Whereas we prefer light colored cotton cloth during the summer when there is heat outside. जब बाहर गर्मी होती है तो उस वक्त क्या करते हैं, हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं. You might have wondered why, आप सोच रहे होंगे या सोचते होंगे कि भाई पर्टिकुलर सीजन में हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ क्यों पहनते हैं. सो इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. सो देखें विंटर में क्या बोल रहा है ये, यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, अंदर आपको क्या है, ठंड लगती है. तो क्या है, व्हेन यू विल कम आउट इन द सन यू विल फील वार्म, गर्माहट फील होगी आपको. वेयर एज इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड, गर्मियों में क्या है, अंदर ही आपको क्या है, घर के अंदर भी गर्मी फील होगी, हॉटनेस फील होगी. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू फील हॉट एंड कोल्ड. वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, ये आप कैसे पता लगाते हैं. How do we find out how hot or cold an object is? कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, गर्म है या ठंडा है. In this chapter we shall try to seek the answer to these questions. So let us start. Hot and cold. In our day-to-day life we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. For example, tea is hot, ice is cold. सभी को पता है ये. List some objects you use commonly in table. This mark these objects as hot or cold. आप टेबल फिल कर सकते हैं if you have the book. Next, do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. You all should be careful while operating these objects. We see that some objects are cold while some are hot. हमें ये पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड होते हैं, ठंडे, और कुछ गर्म होते हैं.
You also know that some objects are hotter than other while some are colder than others. ये भी सभी को पता है कि कुछ ज़्यादा ही गर्म होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से और कुछ ज़्यादा ही ठंडे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स. हाउ डू वी डिसाइड which object is hotter than the other? How do we decide it? We often do it by touching the objects. ये एक वे है इसको डिसाइड करने का. What is our sense of touch reliable? Let us find out. लेकिन क्या जो हमारा टच का जो सेंस है उसके ऊपर हम पूरी तरह से निर्भर कर सकते हैं क्या? Let us find it out. Activity 4.1. Take 3 large mugs, label them A, B, C. Put cold water in mug A, hot in B. Mix some cold water with some hot water in mug C. Now dip your left hand in mug A and right hand in mug B. After keeping the hands in 2 mugs for 2-3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C. Do both the hands get the same feeling? It's a common activity. You can perform it at your home. 3 मग लेने हैं आपने, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा और एक में दोनों का मिक्सचर. दोनों को मिक्स करना है, गर्म पानी को भी ठंडे पानी को भी. तो आपने ए और बी में अपने हाथ रखने हैं थोड़ी देर और उसके 2-3 मिनट के बाद आपने जो हाथ है वो दोनों सी मग में ढालने हैं. फिर देखना है कि क्या आपके जो दोनों हाथ है उनमें जो फील है वो सेम है या अलग अलग है. सो व्हाट यू विल डू देन? भूजो इज सेइंग दैट. देखिए भूजो क्या बोल रहा है. माई लेफ्ट हैंड tells me that the water in the mug C is hot, and the right hand tells me that the same water is cold. What could I conclude? Confusion है देखें. Pujo confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. तो देखिए जो भूजों का कन्फ्यूजन है वहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि हम पता नहीं लगा सकते हैं अपने सेंस से हमेशा कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है. सम टाइम इट में डिसीव अस. कई बार क्या है ये, इससे हमें धोखा भी मिल सकता है. देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़? कैसे हम एग्जैक्टली पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है एक्चुअल में? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. सो जिसके ऊपर हम निर्भर कर सकते हैं वो क्या है देखें, वो है टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट. वो हमें एग्जैक्ट बताएगा कि कोई चीज़ कितनी हॉट है या कोल्ड है. टेम्परेचर से हमें हॉटनेस का पता इजीली लगेगा. Temperature is measured by a device called thermometer, and we can measure the temperature by a device called as thermometer. So measuring temperature. Have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. याद कीजिए जब अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार था या कभी आप हॉस्पिटल गए हों तो डॉक्टर ने क्या है, एक थर्मोमीटर, एक रॉड सी है, उसकी हेल्प से जो है आपका टेम्परेचर क्या मेजर किया, उसको आपके मुंह में रखा थोड़ी देर के लिए, देन सी द रीडिंग्स. द थर्मोमीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. सो जो थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली. एग्जामिन करना है आपने, इसको देखना है इस पर क्या है लिखा हुआ पार. इफ
यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर नहीं है तो अपने फ्रेंड्स से आप शेयर कर सकते हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर। देखें ये दिया है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ग्लास की ट्यूब होगी एक कांच की बनी हुई। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, एक एंड पे बल्ब लगा होगा। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, ये जो बल्ब होगा इसमें क्या होगा आपके पास, मरकरी होगा। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ द मरकरी कैन बी सीन। उस बल्ब में क्या नज़र आएगा आपको, एक मरकरी का थ्रेड नज़र आएगा। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। आप उसको रोटेट कर सकते हैं। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर। साथ ही आपको क्या है, उसमें स्केल भी नज़र आएगा पार। द स्केल वी यूज़ इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। तो जो स्केल होगा उसमें क्या होगा, वो कौन सा स्केल होगा आपका, डिग्री सेल्सियस होगा, उसमें मेंशन पार इंडिकेट किया हुआ होगा। नेक्स्ट is a clinical thermometer reads temperature from 35 degree centigrade to 42 degree Celsius। तो जो आपका ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये क्या रीड करता है, देखिए टेम्परेचर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक आपका ये टेम्परेचर जो है रीड करेगा। एक्टिविटी नेक्स्ट, रीडिंग अ थर्मोमीटर। देखें, let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. टेम्परेचर का जो डिफरेंस है दो मार्क्स के बीच में, उसको आपने नोट करना है। नेक्स्ट इज ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। जो स्मॉल डिवीजन है उनको भी आपने नोट करना है। Suppose the bigger mark read 1 degree and there are 5 divisions between them। मान लीजिए क्या है, जो बिगर डिवीजन है आपका it read 1 और there are 5 smaller division between them, then one small division can read as 1/5 that is 0.2 degree Celsius। इस तरह से आप कर सकते हैं, देखिए उसको। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश करना है आपने। होल्ड इट फर्मली एंड गिव अ फ्यू जग्स। अच्छे से उसको पकड़ना है आपने और थोड़ा हिलाना है थोड़ी देर। द जग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। जब आप उसको हिलाएंगे तो मर्करी का जो लेवल है दैट विल कम डाउन। Ensure that it fall below 35 डिग्री सेल्सियस। आपने इंश्योर करना है कि ये क्या है, 35 डिग्री से नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब जो बल्ब था आगे उसको कहाँ रखना है आपने, अपनी टंग के नीचे, जो उसमें आपको फ्रंट में दिखाया गया आगे जो बल्ब सा लगा होता है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग्स। 1 मिनट के बाद थर्मामीटर निकालना है आपने और रीडिंग नोट करनी है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर था वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर था। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। सो मेक श्योर कि आपने जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में ही मेंशन करना है हमेशा। What did you record as your body temperature? क्या रिकॉर्ड किया आपने? The normal temperature of human body is 37 degree Celsius. Note that the temperature is stated with its unit. तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है, इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस।
सो ये आपने याद रखना है। अब लेट अस ट्राई टू एंश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर। शी गॉट वर्ड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37। वो वर्ड हो गई। सो लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। अब हमने क्या करना है, एक और एक्टिविटी के माध्यम से ये एश्योर करना है पहेली को कि जो उसका जो टेम्परेचर है वो अगर वो एग्जैक्टली नहीं भी था 37, सो देयर इज नो नीड टू बी वरिड। एक्टिविटी 4.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स at least 10 with a clinical thermometers. Record your observation in table this. चलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर that we have discussed so far. Thank you.